Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 3. So this lecture number 3 is basically a continuation of our lecture number 2. In lecture number 2, what we discussed, let me give you an overview so that we can make a connection between lecture number 2 and lecture number 3. We discussed about the goals of MNC. We already know about the goals of an MNC. Basic purpose, basic objective of any MNC is the maximizing a wealth of shareholders. What is an MNC? We already know about it. Any organization, any company, any limited company which works in more than one countries. When it is working in one country, it means that this is only a corporation. This is not a multinational corporation or multinational enterprise. When it is working in beyond the boundary of a single country, it becomes MNCs, multinational corporations. We discussed about business combinations. We have seen business combinations when one company acquires the other company, or two or more companies comes within a one single accounting entity. So that becomes a business combinations. We have seen classes of business combinations. We have seen two types of classifications of business combinations. One is your hostile takeover and other is your friendly takeover. And we have seen when you have an hostile takeover, we use different techniques, different tactics to defend the hostile takeover. Then we have seen business combinations, why and how, what is basically a purpose of business combinations. We discussed in detail about it that when you have business combination, it means that companies are already working. एक कंपनी पहले से काम कर रही है, दूसरी कंपनी को वो अक्वायर कर लेती है, उनके साथ कंबाइन कर लेती है, एंड वी ऑलरेडी नो द अदर नेम्स लाइक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. एक कंपनी जो नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट करती है, तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. व्हेन वन कंपनी कम्स इन अदर कंट्री, registered in the company's rules and regulations, and we already know in Pakistan we have a Securities and Exchange Commission of Pakistan where all the companies are registered. When we have a business combinations, it means companies already working here and one company acquired the ownership of other company. And why business combinations? We used a specific word that was a growth, a common word that was growth. And in the growth, we have seen that the growth of any company through external means is more rapid as compared to internal means. किस तरह कि एक ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है, उसकी ब्रांचेस हैं, उसके ऑपरेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉइज हैं, दे हैव देयर ओन कस्टमर्स, सो इट मींस दैट दे जस्ट अक्वायर द ओनरशिप. ओनरशिप अक्वायर की. अब ओनरशिप जब अक्वायर कर ली है तो सारे का सारा प्रॉफिट अब जिस कंपनी ने अक्वायर किया उसको जाएगा. अब उनको नए सिरे से कोई वहां पर बिजनेस स्टैब्लिश करना नहीं पड़ा, उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजिंग, कुछ भी उनको करना नहीं पड़ा, उनको स्टाफ रिक्रूट नहीं करना पड़ा. सिंपल एक ओनरशिप ली और सारे का सारा प्रॉफिट अब उनको डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया. दूसरा, आपने कंपटीशन को खत्म कर दिया कि एक कंपनी ऑलरेडी काम कर रही थी, आप भी वहां पे काम कर रहे हैं, तो अब एक कंपनी ने दूसरी को अक्वायर कर लिया है, कंपटीशन इज ओवर. नाउ वन कंपनी हैज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि अब उनके पास अब मोनोपोली है, कोई कंपनी उनके अगेंस्ट अब काम ही नहीं कर रही, क्योंकि जो अक्वायरी है वो तो अब जो मेन कंपनी जिसने अक्वायर किया है, एक्वायरर है, उसके इंटरेस्ट में काम करेगी. Then we have seen types of business combinations. आपके पास तीन तरह के business combinations थे. एक horizontal combination, vertical combination and conglomerate combination. In horizontal combination, the combination is made on a same industry. एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग है तो दूसरी कंपनी भी उसको मैन्युफैक्चरिंग में ही होगी तो उनका कॉम्बिनेशन होगा. सो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल में आपके पास
ऑनर, कंपनी के ऑनर्स एक कंपनी के सप्लायर्स या सप्लायर्स जो मैन्युफैक्चरर है उनको अक्वायर कर लेता है. सो दैट इज योर vertical combination. In conglomerate combination we have unrelated type of business. अब इसकी एग्जांपल हमने दी थी commonly used निषाद ग्रुप. They have a combination of cement, then banking and textile. So all three types of business they have a totally unrelated. उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. Then we have seen methods for arranging business combinations. We have seen basically 4 types of business combination. One was your statutory merger, statutory consolidation, acquisition of common stock and acquisition of assets. So these were basically 4 methods for arranging business combination. Statutory merger में हमने देखा था कि आपके पास एक कंपनी दूसरी को अक्वायर करती है, उसकी शेयर्स को परचेज करती है और उसकी लीगल पोजीशंस को डिसॉल्व कर देती है. अब जिस कंपनी की लीगल पोजीशन डिसॉल्व हुई है वो पहली कंपनी का एक्वायरर का सब्सिडरी के तौर पे काम करती है. देन इन द सेकंड स्टैट्यूटरी कंसोलिडेशन, अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल कंपनी सी इज फॉर्म्ड एंड कंपनी ए एंड बी इज डिसॉल्व बाय द कंपनी सी. अब उसके सारे के सारे एसेट्स कंपनी सी के हो जाते हैं और उसकी हमें रीजन भी देखी थी कि क्या रीजन हो सकती है उसकी. फिर एक्विजिशन ऑफ कॉमन स्टॉक, ये आपका बेसिकली पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप होता है कि कंपनी ए ने कंपनी बी के मोर देन 50% शेयर्स को अक्वायर कर लिया होता है. अब जब मोर देन 50% शेयर्स को अक्वायर किया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी की जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो कंपनी ए के पास चली गई. अब जब भी कोई भी रेजोल्यूशन पास होगा उनकी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर तो मेजॉरिटी अब 51% के पास है, तो दे कैन अपॉइंट देयर ओन डायरेक्टर्स, दे कैन अपॉइंट देयर ओन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, दे कैन अपॉइंट देयर ओन डायरेक्टर फाइनेंस, चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स एंड ऑल मेजर ऑपरेशंस दे आर बीइंग डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स और वो कंपनी ए के पास होता है. अब इस रिलेशनशिप को कहा जाता है पेरेंट एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप. This parent and subsidiary relationship explains that company A is a parent company and company B is a subsidiary company. जो बाकी के less than 50% shares होंगे वो अब minority shareholders कहलाएंगे. Majority shareholders when you have a more than 50% of shares and minority shareholders when you have a less than 50% of the shares. इसमें फिर हमने ये भी देखा था कि आपकी 2 तरह की पेरेंट और सब्सिडरी रिलेशनशिप होते हैं. व्हेन यू हैव अ होली ओन्ड सब्सिडरी एंड यू हैव अ पार्शियली ओन्ड. व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स मोर टोटल 100% ऑफ द शेयर होल्डर्स, सो दैट इज अ होली ओन्ड, मींस के यू हैव कंप्लीटली ओन दिस कंपनी. इसकी ओनरशिप आपने कंप्लीटली ओन कर ली है. व्हेन यू हैव लेस देन 100% but more than 50%, between 50 to 100%, that is called partially owned subsidiary company. लेकिन मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग आपके पास ही है. फर्क पार्शियली और होली ओन्ड का यही है कि व्हेन यू हैव 100% ओनरशिप इट मींस यू हैव 100% ओनरशिप. व्हेन यू हैव more than 50% but less than 100%, that is your partially owned. Then we have seen financial statements, consolidated financial statements. I just give a basic differentiation between financial statements and consolidated financial statements. First, in the financial statements we have basically 4 types of financial statements: income statement, cash flow statement, balance sheet and statement of owner's equity. So these are basically 4 types of financial statements. Then in the consolidated financial statements we are talking about business combinations. We are talking about the parent and subsidiary relationships. We have discussed the methods for arranging business combinations. When we have a parent and subsidiary relationship, there is always used consolidated financial statements. Because in the parent and subsidiary relationship, both companies keep their existence, keep their legal entity.
So it means parent company is also preparing their financial statements, subsidiary company is also preparing their financial statements. Now, when a parent company prepares its financial statements, all the data of subsidiary financial statements are also included in the financial statements of parent company. जब आप सब्सिडरी का भी डाटा सारे का सारा ऐड करते हैं पेरेंट कंपनी के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड consolidated financial statements. We discussed this in other course as well, but for your own understanding, for your review, I am just giving it a little bit touch. कि आपने सब्सिडी ने तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, लेकिन जब पेरेंट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो वो सब्सिडी का डाटा भी ऐड करेगी, क्योंकि ऑनरशिप पेरेंट कंपनी के पास है, तो उसका डाटा सारे का सारा किस में जाएगा? आपकी पेरेंट कंपनी में. जब पेरेंट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो दैट इज कॉल्ड योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नॉर्मली आपकी बेसिक 4 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन 5वीं भी इंक्लूड की जाती है, दैट इज कॉल्ड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी उसमें एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, और ये नंबर्स आए कहां से, इनकी डिटेल्स क्या है, सो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द नोट्स ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसमें डिटेल होती है कि इसमें कैसे आपने नेट अमाउंट कैलकुलेट की है, आपके एक्सपेंसेस हैं तो इनकी डिटेल्स क्या है. सो दीज आर ऑल फाइंड इन द notes to the financial statements. Then we have seen constraints inferring with the MNC's goals. कौन-कौन सी constraints हैं जो आपको आपके जो goals हैं, goals क्या है आपका MNC's का? Increase the wealth of shareholders. तो वो goals आपकी जो shareholders की wealth है उनको reduce करता है. And we have seen 3 basic types of your constraints. इसमें आपके पास एथिकल भी थी, लीगल भी थी, आपकी जैसे बिल्डिंग कोड्स वगैरह आपने देखे थे, टैक्सेस वगैरह देखे थे, और एथिकल में आपने देखा था कि मे बी वन टाइप ऑफ बिजनेस इज एथिकल इन वन कंट्री दैट माइट नॉट बी एथिकल इन द अदर कंट्री. अब पाकिस्तान में जैसे हराम चीजें दे आर नॉट अलाउड, दैट इज अनएथिकल, यहाँ पे पाकिस्तान में वो बिजनेस नहीं किया जा सकता, लेकिन यूरोप में किया जा सकता है उसको. So these are when companies, for example, starting their business in Pakistan, it means that they have to keep in mind the ethical issues in Pakistan. कि यहाँ पर आप कोई भी हराम चीज सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो करेंगे तो कोई परचेज ही नहीं करेगा. So it means that they are cutting down their profit. सेल ही नहीं होगी तो जाहिर है फिर वो प्रॉफिट कहां से आएगा उसका. देन मैनेजिंग विद द कॉन्स्टेंट्स, एंड वी हैव सीन, बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर, दैट we have adopted foreign books, and they normally give the example of US. So in US they say that we have to adopt the international standards, whatever the cost they have to bear. वो bribery नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं देंगे किसी को. जिस तरह एक करप्ट एनवायरनमेंट में होता है कि आपके पास जितने भी लोग बैठे होते हैं लीगल पोजीशंस पे, तो यू हैव टू पे सम ब्राइबरी और समथिंग लाइक दैट. सो दे से दैट नो, वी आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग, वी कैन इन्फ्लुएंस सम अदर वेज. अदर वेज कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू उनको फोर्स करवाया जा सकता है, बट दे से दैट वी विल नॉट गिव एनी ब्राइबरी. द रीजन इज दैट कि देयर कंपेटिटर्स आर वॉच डॉग्स. वो उनको देख रहे होते हैं कि कहीं पे कोई इस तरह की ये चीज करें, एंड वी एक्सप्लॉइट इट, और उनको हम बदनाम करें मार्केट में कि ये इस तरह का बिजनेस करते हैं ये लोग. सो अमेरिकन बिजनेसमैन नॉर्मली से दैट, अमेरिकन कंपनीज नॉर्मली से दैट कि वी विल नॉट टॉलरेट इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, वी विल अप्लाई ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो वट एवर द कॉस्ट वी हैव टू बियर, जितना हमें खर्च ज्यादा करना पड़ जाए हम करेंगे, लेकिन और जितना टाइम ज्यादा लगे हम देंगे, लेकिन हम कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो है उनके ऊपर उनके कंपेटिटर्स ब्लेम कर सके. सो दैट वाज बेसिकली ऑल अबाउट अवर प्रीवियस लेक्चर. सो लेट मी स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट दैट वी लेफ्ट इन माय प्रीवियस लेक्चर, theories of international business. What brings the companies to become international? What makes a businessman to do international business? तो आपके पास ये नॉर्मली 3 थेरीज बताई जाती हैं कि जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं. अदरवाइज यू आर वर्किंग इन योर ओन कंट्री,
You are working in your province, you are working in your district. When you are expanding your business, you say that, okay, I am working in, for example, one city. Now, I should open my another branch in another city. And when you see that, okay, there is a demand for my business, my products, so why shouldn't I open another branch in another city? तो आप अपनी cities को expand कर रहे हैं, but you are still in the province. When you say that could also be a demand in the other provinces as well, तो फिर आप दूसरे प्रोविंस की तरफ मूव करते हैं. आप फॉर एग्जांपल पंजाब में हैं तो आपने मूव किया खैबर पख्तूनख्वा में, आपने मूव किया सिंध में, आपने मूव किया बलूचिस्तान के अंदर. तो आप अब प्रोविंसेस की तरफ मूव कर रहे हैं. लेकिन जब आप देखते हैं कि ओके नाउ माय प्रोडक्ट डिमांड कुड बी इन अदर कंट्रीज एज वेल, तो फिर आप इंटरनेशनल मूव करते हैं. आप अपना बिजनेस कहते हैं कि ओके एक तो ये है कि प्रॉफिट मार्जिन मुझे वहां पे बेहतर मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी मेरी, प्लस मुझे और बेनिफिट्स भी हो सकते हैं. मुझे एटलीस्ट एक पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से मैं निकल के किसी और एनवायरनमेंट में जाके सेल आउट करूंगा, क्योंकि उनकी करेंसी स्ट्रांग है तो मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे. यहां पे मैं जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो डिफिकल्ट है. यहां पे आपके पास क्रेडिट स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा है, क्रेडिट पे काम बहुत ज्यादा है, तो आप इसको छोड़ें, आप चलें दूसरे कंट्री के अंदर. वहां पे आपकी कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं है. आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होगा, उसके थ्रू आप पेमेंट करें, पेमेंट रिसीव करें, इनफ्लो होगी आउटफ्लो होगी, आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है. तो ये चीजें जब आप सोचते हैं तो उसके अगेंस्ट फिर आपकी थेरीज डेवलप होती हैं, और ये थेरीज आपको बताती हैं कि दीज वर बेसिकली द रीजंस दैट ब्रॉट इनटू योर इंटरनेशनल बिजनेस. फर्स्ट वन इज थेरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. आप थोड़ा सा इसके वर्ड से थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कंपैरेटिव एडवांटेज, इट मींस दैट यू आर गेटिंग अ बेटर कंपैरेटिव एडवांटेज इन अदर कंट्री. आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में आपकी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रही, या हो रही है तो कम प्राइस पे हो रही है. ओके, इफ यू सेल आउट दिस इन द अदर कंट्रीज, ओके, then we have a better comparative advantage. Then there is imperfect market. मार्केट वहां पर परफेक्ट नहीं है कि जिसकी वजह से आपके लिए स्पेस है काम करने की, वहां पे आप वहां पे जाके काम कर सकते हैं. देन प्रोडक्ट साइकिल थेरी. एक प्रोडक्ट ने बनना है और उसके बाद सेल आउट हो जाना होता है. एक प्रोडक्ट ने बनना, उसके बाद सेल आउट हो जाना, और उसकी एक मैच्योरिटी लाइफ होती है प्रोडक्ट की, कि उसके बाद फिर नए सिरे से, फिर नए सिरे से, फिर नए सिरे से. सो दीज आर बेसिकली द 3 theories which are considered for the international business. So let me give you a brief overview about these theories. When a country specializes in some products, it may not produce other products, so trade between countries is essential. So it means that, for example, America, you just think about it, America specializes in what? China specializes in what? Japan specializes in what? India specializes in what? UK, Germany, France. There is no perfect market. एक कंट्री एक जगह के अंदर स्पेशलाइज करता है, दूसरा दूसरे के अंदर स्पेशलाइज करता है. तो फिर वो कहते हैं कि ओके नाउ ट्रेड बिकम्स एसेंशियल. यहां पर आपको एग्जांपल भी दी है, अमेरिकन एंड यूरोपियन टेक्नोलॉजी. ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी नो अबाउट इट कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस्ड, यूरोपियन टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस्ड. चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, बिकॉज दे आर इमर्जिंग मार्केट, दे हैव इमर्जिंग मार्केट, दे हैव डेवलपिंग कंट्री. तो अभी उन्होंने वो स्टेज अचीव नहीं की, अभी वो अपने आप को एमर्ज कर रहे हैं. अब टेक्नोलॉजी वहां पे एडवांस नहीं है, लेकिन वहां पर वो जो स्पेशलाइज करते हैं वो चीप लेबर में करते हैं, चीप रॉ मटेरियल में करते हैं वो. इसका मतलब ये हुआ कि वन कंट्री स्पेशलाइज इन वन, अदर कंट्री स्पेशलाइज इन अदर. सो ट्रेड बिटवीन दीज कंट्रीज बिकम एसेंशियल. तो क्या होगा
कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना के अंदर आएगी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी चाइना के अंदर आएगी, टेक्नोलॉजी आ गई, देन अब चाइना की लेबर सस्ती लेबर है, वहां पे काम होगा। चीप रॉ मटेरियल है, सस्ता रॉ मटेरियल है, तो इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल वुड आल्सो बी यूटिलाइज्ड। लेकिन यूएस के अंदर चीप रॉ मटेरियल नहीं है, चीप लेबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंट्री स्पेशलाइज करता है एक चीज के अंदर, दूसरा कंट्री स्पेशलाइज करता है दूसरी चीज के अंदर, सो ट्रेड बिटवीन दीज कंट्रीज बिकम एसेंशियल। इसी तरह इंडिया के अंदर भी है, रॉ मटेरियल भी चीप है और लेबर भी चीप है, टेक्नोलॉजी यूरोपियन और यूएस की आ जाएगी, तो उनके दरमियान फिर कॉम्बिनेशन होगा, अब दोनों के दरमियान ट्रेड हो रही है। सो दैट थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट देयर इज अ कंपैरेटिव एडवांटेज of cheap labor and cheap raw material in China, whereas in US they have a comparative advantage in the technology. अब इनके दरमियान ट्रेड होगी, तो जिसने इंटरनेशनल बिजनेस को इमर्ज किया। So I hope कि now you understand what I means के theory of comparative advantage explains that when a country specializes in some products, it may not specialize in other products. So trade between countries is essential. Imperfect market. So is there any room to work over there? क्या वहां पर आपको कोई पोटेंशियल नजर आ रहा है? मार्केट क्या परफेक्ट है कि वहां पे हर चीज सैचुरेट हो चुकी है, हर चीज बेहतरीन चल रही है वहां पे? तो फिर इसका मतलब ये हो कि व्हेन यू हैव अ परफेक्ट मार्केट you have a perfect competition. When you have a perfect competition, it means there is a low profitability for the organization. So that is why they try to move on that countries where they can get more benefits. So imperfect market allows you to go for the international business. So real world suffer from imperfect market conditions where factors of productions are somewhat immobile. लेबर कितना एक मूव कर सकती है? कुछ लोग, बट नॉट ऑल लेबर। एक कंट्री की लेबर दूसरे कंट्री में तो नहीं जा सकती ना। देयर आर कॉस्ट एंड ऑफन रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट कि लेबर कितने मूव करेगी, फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन आपके वो कितने मूव करेंगे। सो दैट इज वाई दे से दैट कि आपके पास जो इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन है वो आपको इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ मूव करती है। There may also be restriction on the transferring funds and other resources among countries. अब जो एंड पे लिखा हुआ है, you read it. Imperfect market provides an incentive for firms to seek out foreign opportunities. अब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये जितनी भी इकोनॉमीज हैं, इनको अगर आप देखें, so you see कि आपको यहां पर प्रोडक्ट्स की डिमांड भी नजर आएगी, क्योंकि यहां पर लोगों को चीजें चाहिए। टेक्नोलॉजी की मैंने बात की लास्ट स्लाइड में, तो टेक्नोलॉजी किसके पास है? यूएस के पास है, यूरोप के पास है। तो टेक्नोलॉजी मूव करनी आसान है एज कंपेयर टू लेबर या अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल, जाहिर है रॉ मटेरियल कितने का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कितने के कंट्री इंपोर्ट करेगा, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप उसी कंट्री के अंदर जाएं, काम करें और उनसे बेनिफिट्स लें। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कराची के अंदर प्लांट क्यों लगते हैं? जितनी भी प्रोडक्शन प्लांट हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल हैं, सारे के सारे कराची के अंदर क्यों हैं? उसकी क्या रीजन है? वाई नॉट इन लाहौर, वाई नॉट इन फैसलाबाद, वाई नॉट इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, वाई? उसकी क्या रीजन हो सकती हैं कि आप सिर्फ पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं दे रहे, पाकिस्तान से आप बेनिफिट नहीं ले रहे, आप ले रहे हैं बेनिफिट उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी, कि आपने एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोर्ट भी है उसको चूज किया, वहां पर अपना प्लांट लगाया। अब पाकिस्तान की जरूरत तो पूरी कर ही रहे हैं ना, आप साथ किसको कर रहे हैं एक्सपोर्ट? आप अफगानिस्तान को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ईरान को भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट, आप इसके अलावा इंडिया उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेपाल, श्रीलंका उनको भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुबई को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बना कहां पे रहे? कराची के अंदर। एक्सपोर्ट आप नियर बाई कंट्रीज जितने भी उनको भी कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि आप इम्परफेक्ट मार्केट की वजह से, अब इम्परफेक्ट मार्केट आपको कैसे बताती है कि आपके पास लेबर चीप,
यूएस यूरोप के अंदर नहीं है, रॉ मटेरियल चीप यूएस या यूरोप के अंदर नहीं है, वो कहाँ पे? इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर है। अगर यही हर चीज हो जाए तो फिर तो आपकी परफेक्ट मार्केट होगी। सो इम्परफेक्ट मार्केट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर फर्म्स टू सीक आउट फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, सो दैट इज व्हाई कंपनीज गो फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस। देन प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, ये आपको क्या बताती है? फर्म्स बिकम एस्टैब्लिश्ड इन द होम कंट्री as a result of some perceived advantage over existing competitors, such as a need by a market for at least one more supplier of the product. Information about market and competition is more readily available at home. Firms will export the product and ultimately produce the product in the foreign markets to reduce its cost, transportation cost, labor cost. अब आप देखें कि आप चाइना में फॉर एग्जांपल अक्सर एग्जांपल देते हैं आपको, लेबर चीप है और रॉ मटेरियल चीप है, तो यूएस मूव क्यों कर रहा है उधर? वो अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी तो कर सकता था चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। जापान पाकिस्तान के अंदर गाड़ी एक्सपोर्ट भी तो कर सकता था, वहां पे बनाए यहां पे सेल आउट कर दें। तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती थी उनके, बट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि आपके वहां पे लेबर एंगेज हो रही है, आपका रॉ मटेरियल एंगेज हो रहा है वहां पे, तो आपको तो गवर्नमेंट को तो बेनिफिट हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि देयर शुड बी अ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कि जिससे आपके लोगों को भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, ओके दिस कुड बी अ वन सेगमेंट, लेकिन आप किस हद तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो फिर आप कहते हैं कि ओके नाउ वी शुड मूव। अब जापान में जो टेक्नोलॉजी बनी उसके बाद वो पाकिस्तान में मूव हुई, पाकिस्तान से हो सकता है वो आगे अफगानिस्तान में मूव हो जाए, चल तो रहा है ना सिलसिला। अब पाकिस्तान में जब खत्म होगी तो फिर वो कहां चली जाएगी? अफगानिस्तान के अंदर। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन्स दैट इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये तीन आपकी थेरीज हैं जो आपको बताती हैं कि ओके नाउ यू गो फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस। कंपैरेटिव एडवांटेज, इम्परफेक्ट एंड प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, ये तीन थेरीज आपको इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ मूव करती हैं। नाउ अब यहां पर देखें क्या होगा इंटरनेशनल प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी में। फर्म्स क्रिएट प्रोडक्ट्स टू अकोमोडेट लोकल डिमांड। अब एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग इन जापान। अब फर्म्स प्रोडक्ट्स बना रही हैं और जापान की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही हैं। व्हेन दे फील कि ओके वी आर फुलफिलिंग आवर डिमांड्स, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग एक्सेस टू आवर डिमांड, सो दैट व्हाई शुडंट वी एक्सपोर्ट इट टू द अदर कंट्रीज। सो फर्म्स एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू अकोमोडेट फॉरेन डिमांड। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो फिर उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर। थर्ड में क्या होगा? फर्म्स establishes foreign subsidy to establish presence in the foreign country and possibly to reduce cost. फिर उन्होंने कहा कि okay, when we export our products in Pakistan, for example Toyota Motors Japan, they are exporting their products in Pakistan. Now they feel that we are bearing basically more cost when we export. Our transaction cost is much more. We have to pay huge amount in terms of taxes, in terms of carriage, in terms of shipment cost. We have to pay huge amount. So why shouldn't we establish a subsidiary in Pakistan with the name of Toyota Motors Pakistan, register it in the Securities and Exchange Commission of Pakistan. We install a production plant in Karachi, so that we should utilize the raw material of Pakistan, we should utilize the cheap labor of Pakistan rather than paying a huge amount to our workers. So उन्होंने वहां पर पाकिस्तान में कराची के अंदर टोयोटा मोटर्स की एक सब्सिडरी इस्टेब्लिश की और उसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर करवा लिया और वहां पर प्लांट भी लगा लिया।
वहां पर प्रोडक्शन शुरू होगी। फिर दो केसेस होंगे उससे, वो क्या होगा कि फॉरेन बिजनेस डिक्लाइंस एज इट्स कंपेटिटिव एडवांटेजेस आर एलिमिनेटेड। उन्होंने कहा कि हमने फर्म इस्टेब्लिश कर दी है लेकिन डिमांड उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, जिससे क्या होगा, उनका जो कंपेटिटिव एडवांटेज, तो उन्होंने कहा कि जी हमें कॉस्ट एक्सपोर्ट के थ्रू ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है, तो वो अब जो हमने सोचा था कि कंपनी इस्टेब्लिश कर लेंगे लेकिन वो हमें कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ रही है क्योंकि डिमांड ही हमारी प्रोडक्ट्स की इतनी नहीं है, तो उससे उनका बिजनेस एलिमिनेट होता जाएगा। या firms differentiates products from competitors and are expand product line in foreign country। वो कहेंगे कि okay, we have established a subsidiary, we have installed a plant, so why should we keep it only for a one product line। अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में GLI XLI या लैंड क्रूजर्स है, ये तो एक इनकी टाइप होगी। वो कहते हैं कि हम और प्रोडक्ट्स भी बना लेते हैं जो उन लोगों की डिमांड्स को पूरी करेगी, तो फिर वो और भी साथ उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी, जिसने उन्होंने कहा कि ओके ये तो हम कर ही रहे हैं ना, लेबर भी इंगेज हो गई, हमारी छोटी गाड़ियां भी बन रही हैं, अब हमारा बिजनेस चल पड़ा, तो जिससे वो कंपेटिटिव एडवांटेज उन्होंने ले लिया। सो ये आपका पूरे का पूरा प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी बताती है आपको कि आपने प्रोडक्ट्स बनाई लोकली, फिर आपने एक्सपोर्ट की, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, आपने कहा कि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है तो हम कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं उस कंट्री के अंदर जहां पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर जब कंपनी इस्टेब्लिश की, उन्होंने वहां पर फैक्ट्री इंस्टॉल की, प्लांट लगाया उन्होंने, फिर उनके बाद उन्होंने देखा कि अगर वो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उनका कंपेटिटर आ जाएगा और फिर वो उनकी जो बिजनेस है वो डिक्लाइन कर जाएगा, या फिर वो कहेंगे कि ओके वी शुड डिफरेंशिएट, वी शुड एड अप न्यू प्रोडक्ट लाइन, हम छोटी गाड़ी भी बनाते हैं ताकि वहां के लोगों की जरूरियात भी पूरी हो। तो फिर यहाँ पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उनका वो एक्सपेंड हुआ। सो दैट इज प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। नाउ इंटरनेशनल बिजनेस मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे सारे इंटरनेशनल बिजनेस आपके। बेसिकली वी हैव 6 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मेथड्स। वन इज इंटरनेशनल ट्रेड, एज वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। Okay, one country, and we already know, and I assume that you already know about the import and export difference. The difference between both would be balance of trade, लेकिन ये आपका बिजनेस करने का तरीका होता है। आप इंपोर्ट करके भी बिजनेस करते हैं, आप एक्सपोर्ट करके भी बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल है, आप टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स को मार्केट में, यूरोप की मार्केट में भेजते हैं, या पाकिस्तान में जो आपका राइस है दैट इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो यू एक्सपोर्ट इन यूरोपियन कंट्रीज, US, योर राइस, एंड देन यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ इट, so that is also a kind of business. On the other hand, you are importing products and selling it out in the Pakistani market, so that is also a kind of international business. One person is doing export business, other person is doing import business. गाड़ियां पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं बाहर से, पाकिस्तान में जो आपकी टी है वो मंगवाई जाती है, चाय की पत्ती जो टी लीव्स होते हैं वो मंगवाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। ये इसके अलावा और भी बहुत सी आपकी वेजिटेबल्स हैं, आपकी और भी प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। सो ये आपकी वन टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है कि यू आर वर्किंग बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ योर सिंगल कंट्री। Then licensing. It obligates a firm to provide its technology. अब उसमें क्या होगा, कॉपीराइट्स हैं, आपके पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं या ट्रेड नेम्स हैं, in exchange for fees or some other specified benefits. अब यहां पर आपको वो एक फीस के अगेंस्ट आपको वो कॉपीराइट दे रहा है, आपको वो पेटेंट दे रहा है, आपको वो ट्रेडमार्क दे रहा है या ट्रेड नेम दे रहा है कि आप इसके थ्रू बिजनेस करें। अब इसमें आपके पास क्या होगा लाइसेंसिंग में, कि आप प्रॉपर लाइसेंस दे रहे हैं उसको कि ओके आप बनाएं और सेल करें हमारे नाम के साथ, आप बनाते जाएं और सेल करते जाएं हमारे नाम के साथ, लेकिन यू हैव टू पे अ स्पेसिफाइड फीस टू अस बाय यूजिंग आवर नेम, आवर ट्रेडमार्क, आवर ब्रांड नेम, व्हाटएवर, हमारी कंपनी का नाम यूज करें,
लेकिन आपने वही स्टैंडर्ड रखना होगा, आपने वही क्वालिटी मेंटेन रखनी होगी। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में डोमिनोज पिज्जा है, अभी इनके पास प्रॉपर एक लाइसेंस मौजूद है कि वो बनाते भी हैं और सेल आउट भी करते हैं, बनाते भी हैं और सेल आउट भी करते हैं। अब डोमिनोज यूएस बेस्ड है, तो वहां पर उन्होंने आपको कॉपीराइट भी दिया, आपको पेटेंट भी दिया है, आपको ट्रेडमार्क भी दिया है, या आपको ट्रेड नेम भी दिया है, तो आप उसके अगेंस्ट उनको फी पे करते हैं और आप उनका नाम यूज करके सेल करते हैं। अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको नजर आएगा कि बेसाब नाम है, लेकिन वहां पे उनकी सेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ब्रांड नेम ही नहीं है उनके पास, एक लोकल है वो चल रहा है, दैट्स इट। और लोकल की उतनी सेल भी नहीं है। फ्रेंचाइजिंग, इट ऑब्लिगेट्स अ फर्म टू प्रोवाइड, नाउ इन लाइसेंसिंग यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट your company is basically in other country and you have taken a license from that country's company कि वो आपको अलाउ करें। अब मैंने जैसे आपको डोमिनोज पिज्जा की एग्जांपल दी है, तो वो पिज्जा आपकी कंपनी आपकी यूएस में, लेकिन काम कहां पे कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर। सो यू हैव टेकन अ लाइसेंस, यहां पर आपने लाइसेंस लिया उसका। देन फ्रेंचाइजिंग, इट ऑब्लिगेट्स अ फर्म टू प्रोवाइड अ स्पेशलाइज्ड सेल्स और सर्विस स्ट्रेटेजी। यहां पर आप इसको डिफरेंशिएट करना है आपने कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग, इट ऑब्लिगेट्स अ फर्म टू प्रोवाइड अ स्पेशलाइज्ड सेल्स और सर्विस स्ट्रेटेजी, सपोर्ट असिस्टेंस एंड पॉसिबली एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द फ्रेंचाइज इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियोडिक फीस। अब यहां पर डिफरेंस देखें कि आपकी ऊपर स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं थी या सर्विस स्ट्रेटेजी नहीं थी, आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, आप सेल आउट कर रहे हैं, आप उनका नाम यूज कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। आपकी टेलीनॉर की फ्रेंचाइज है, आपकी यूफोन की फ्रेंचाइज है, यस यू अंडरस्टैंड। आपके पास जोंग की फ्रेंचाइज है। सो यू आर बेसिकली यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड सेल्स और सर्विस स्ट्रेटेजी, उसके अगेंस्ट आपने एक उनको पीरियोडिक फीस देनी होती है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, लाइसेंसिंग में, यहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लाइसेंस सिंपल आपको एक फ्रेंचाइज मिल गई और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फोर्थ वन इज योर जॉइंट वेंचर्स। अ जॉइंट वेंचर इज अ वेंचर दैट इज जॉइंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय 2 or more फर्म्स। आपके पास एक बड़ी नीट एंड क्लीन सी एग्जांपल मौजूद है सोनी एरिक्सन की। सोनी इज which belongs to which country? Japan. And Ericsson belongs to Sweden. So it means that you have a different specializations in your own areas, combining and bringing a new product which is more efficient in its operations. अब सोनी एरिक्सन ने ज्वाइंट वेंचर किया, एक स्वीडन की कंपनी एक जापान की कंपनी आपस में एक प्रोडक्ट बना दी मिलके, तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस हुआ। अगर दोनों ही कंपनी आपकी कहां पर होती, सोनी और एरिक्सन जापान की होती, तो फिर वो इंटरनेशनल बिजनेस ना होता, क्योंकि एक सेम कंट्री के अंदर काम कर रहे थे वो। लेकिन अब एक स्वीडिश बेस्ड और एक जापानीज बेस्ड कंपनी, दोनों ने मिलके एक नई प्रोडक्ट बना दी और वो ज्वाइंट वेंचर था उनका। अब ये ज्वाइंट वेंचर को एक चीज जहन में रखिएगा कि दैट इज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड फॉर अ स्पेसिफिक project, that is not done for the whole of the period and for all lifetime of the companies. एक स्पेसिफिक वेंचर होता है जिसको उन्होंने ज्वाइंट किया होता है, और वो वेंचर उनका सोनी एरिक्सन का था, एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। इसके अलावा उनका और कुछ नहीं है। ये सिंपल एक बिजनेस को करने के लिए है। कंपनीज ज्वाइन नहीं हो रही हैं आपस में, कंपनीज कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो एक स्पेसिफिक वेंचर था जिसके लिए आपस में वो इकट्ठे हुए, उनके कोई एफिलिएशन नहीं हुई है अदर देन एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो उनका प्रोजेक्ट था उसके लिए उन्होंने किया। देन एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। Firms can also penetrate foreign markets by establishing new operations in the foreign countries. We already discussed about it in detail. To produce and sell their products, acquisition allow firms to have full control over their foreign businesses
and to quickly obtain a large portion of foreign market share. हमने इसको काफ़ी डिटेल से देख लिया हुआ है कि कोई ऑलरेडी बिजनेस है वहाँ पे तो उसको आप अक्वायर कर लेते हैं, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है और उसके ऑपरेशंस पर आपने उनको टेक ओवर कर लिया और वो काम कर रहे हैं। इस्टेब्लिशिंग न्यू फॉरेन सब्सिडीज, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ऊपर वाला आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का था, एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस का था। दिस वन, सिक्स्थ पॉइंट इज यूर एस्टेब्लिशिंग न्यू सब्सिडीज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि टोयोटा मोटर्स वांटेड टू वर्क इन पाकिस्तान, सो दे एस्टेब्लिश्ड न्यू सब्सिडीज and they also established a new installed a new plant in Karachi, so they started working over there. ये एक नए सिरे से उनका सिस्टम स्टार्ट हुआ। So we discussed basically 6 methods of international business. वो कौन कौन से आपने हैं? You have seen import and export, franchising, licensing, joint ventures, then acquisition of existing operations and establishing new foreign subsidiaries. ये आपने 6 methods देखे हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में यूज किए जाते हैं। आप कोई भी उठा के देख लें एग्जाम्पल, आपको इनमें से कोई ना कोई लिंक नजर आएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रही होगी या तो, अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं है तो फिर आपने लाइसेंस लेके काम कर रहे होंगे, लाइसेंस नहीं लिया हुआ तो आपने कोई फ्रेंचाइज ली होगी, फिर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर जॉइंट वेंचर होगा। अब ये भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑपरेशंस उन्होंने वहां पर अक्वायर कर लिए हुए, एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। अब ये भी नहीं है तो इट मींस कि दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यू सब्सिडी एंड दे हैव स्टार्टेड टू वर्क ओवर देयर। सो दीज आर बेसिकली द 6 इंटरनेशनल बिजनेस मेथड्स। नाउ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, हाउ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज exist, how international opportunities are being created. So if you look at on this slide opportunities in Europe, they have seen a single European Act of 19. This is basically a history, so you just keep it in your mind that how the opportunities were created. When there is an event, it means that this brings a new opportunity for your business. कुछ भी अगर एग्रीमेंट होगा, कोई एक्ट में आएगा, कोई इवेंट होगा, so that brings new opportunities. Here if you look at single European Act of 1987, इससे जब सिंगल यूरोपियन एक्ट आया तो यूरोप सारा ज्वाइन हो गया, जैसे हर एक कंट्री अपने तौर पे काम कर रहा था। अब यहां पर एक्ट आने के बाद एक सिंगल यूरोपियन एक्ट बना। सो इफ फॉर एग्जांपल कंपनी ऑफ यूके वांट्स टू वर्क इन फ्रांस, so they are allowed to work without any restriction. पूरे, क्योंकि पूरे यूरोप का एक ही एक्ट हो गया था। इस तरह नहीं है कि जैसे हमारे पास एशिया में पाकिस्तान का डिफरेंट एक्ट है, इंडिया का अलग से है, चाइना का अलग से। अब पूरा यूरोप में जितने भी कंट्रीज, उनके लिए उन्होंने एक सिंगल लेजिस्लेशन बना दी। अब एक यूके की कंपनी फ्रांस के अंदर काम करना चाहती है तो दे कैन डू इट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। देन रिमूवल ऑफ बर्लिन वॉल 1989, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। अब 2 कंट्रीज डिफरेंट थे तो उनके दरमियान में उन्होंने जो बर्लिन वॉल थी उसको गिरा के एक कंट्री बना दिया, तो यहाँ के लोग वहां पे जाके काम कर सकते थे, वहां के लोग दूसरे कंट्री के अंदर आके काम कर सकते थे। प्लस एक कंपनी जो ईस्ट जर्मनी के अंदर काम कर रही थी वो अब वेस्ट जर्मनी के अंदर भी काम करना शुरू हो गई। सो उनका जो एक एक्सपेंशन थी बिजनेस की वो हुई। देन इंसेप्शन ऑफ यूरो इन 1999। अब 1999 के अंदर आपका यूरो इंट्रोड्यूस हुआ। डू यू रिमेंबर दैट कि नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप दे हैव अ सिंगल करेंसी विच इज यूरो। सो फर्स्ट इन Germany was the initiator of this euro, a single currency unit. अब कुछ कंट्रीज हैं वो अभी अडॉप्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर अभी पाउंड स्टर्लिंग चल रहा है, और स्वीडन के अंदर स्वीडिश क्रोना, डेनमार्क के अंदर डेनिश क्रोना, या इसके अलावा आपका और भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पे दे हैव देयर ओन करेंसीज, बिकॉज although there is no restriction for adopting euro, they make a referendum in their country and they almost after a specific period of time they see that should we adopt this euro or not. तो वो उनके रेफरेंडम में बताया जाता है कि जी नहीं, स्टिल वी आर नॉट अडॉप्टिंग। बिकॉज आप देखें कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर आप अगर मूव करते हैं तो फिर थोड़ा सी वहां पर इन्फ्लेशन भी आती है, प्रोडक्ट्स भी एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट स्टिल यूरो।
अभी भी चल रहा है उनके पास। लेकिन जो मेजर कंट्रीज हैं उनके, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है या और भी कंट्रीज हैं, दे हैव अडॉप्टेड यूरो। अब उसका फायदा क्या हुआ उनको यूरो का, कि अब जर्मनी फ्रांस से अगर ट्रेड करे या फ्रांस इटली के साथ ट्रेड करे तो देयर इज नो कन्वर्टिबिलिटी इशू ऑफ एनी करेंसी। उनका अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस करेंसी के अंदर करेंगे, क्योंकि अब आपने फॉर एग्जांपल कोई 1 मिलियन यूरो की कोई भी इंपोर्ट की है तो यू हैव टू पे 1 मिलियन यूरो, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इन द अदर करेंसी। अब जैसे पहले जर्मन मार्क था, जर्मनी की करेंसी, या आपके पास फ्रेंच फ्रैंक था, फ्रांस की करेंसी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी को जर्मन मार्क को कन्वर्ट करना था फ्रेंच फ्रैंक के अंदर, उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आनी थी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी आनी थी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट कि आप उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेयर करनी पड़ती है। बट नाउ एट दिस टाइम यूरो इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर इन यूरोप, इररेस्पेक्टिव के वन कंट्री हैज अडॉप्टेड दिस यूरो और नॉट, उसको एक्सेप्ट जरूर किया जाता है और उनके लिए अब ट्रेड भी इजी हो गई है, वहां पे बिजनेस को एक्सपेंड करना भी इजी हो गया, हर काम उनके लिए आसान हो चुका है। देन एक्सपेंशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 2004, फिर अब शुरू में जब यूरोपियन यूनियन को सिंगल यूरोपियन एक्ट में लेकर आए थे तो उस वक्त कुछ कंट्रीज ने अडॉप्ट नहीं किया था। अब यूरोपियन कंट्रीज उसके अंदर आते जा रहे हैं और उस लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और वो जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर जब ये कंट्रीज बढ़ रहे हैं तो इट मींस कि दे वन कंट्री हैविंग अ कंपनी इन यूके दे कैन आल्सो स्टार्ट देयर बिजनेस इन एस्टोनिया या लेटविया या पोलैंड, वट एवर द कंट्रीज दे हैव। किसी भी कंट्री के अंदर आप कोई ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं तो आपको किसी भी अलग से कंपनी को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे जापान की कंपनी पाकिस्तान के अंदर आएगी तो दे नीड अ separate legislation, they have to adopt it, they have to register their company in the Securities and Exchange Commission of Pakistan. यूके की कंपनी अगर पोलैंड के अंदर काम करना चाह रही है तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, जाएं और ब्रांच ओपन कर दें, वहां पे अगर कोई फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री लगा ले, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। तो फिर अब उसके बाद एक और अब शेंजन स्टेट्स बन रही हैं। यूरोप इटसेल्फ के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब शेंजन्स बनाया गया है फॉरेन कंट्रीज अदर देन यूरोपीय यूनियन के लिए, कि आप अगर फॉर एग्जांपल स्वीडन के अंदर आपको वीजा मिला है तो आपको वो शेंजन वीजा मिलेगा। सो इट मींस दैट यू कैन ट्रैवल इन मोर देन 25 कंट्रीज विदाउट टेकिंग एनी वीजा। तो ये एक और इमरजेंस आ रही है, तो उससे क्या होता है कि उनकी टूरिस्ट के जो उनको बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं, इस तरह के एडवांटेजेस आपको जाहिर है कि टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री है तो उसके वो बेनिफिट ले रहे होते हैं इस तरह की चीजें करने के बाद। देन अपॉर्चुनिटीज इन एशिया, देन रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस इन 1990, एशिया के अंदर भी इस तरह की उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको जरा लूज किया, उनको भी उन्होंने कम किया, तो जिससे उनको यह है कि जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आई, जो कोटाज लगे हुए थे उनको कम किया गया, इस तरह की चीजें जो थी उन्होंने एशिया के अंदर भी जो है वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव किया था। देन इम्पैक्ट ऑफ एशियन क्राइसिस इन 1997, so you must keep it in your mind one thing, that when there is crisis it means there is also bringing another opportunity, क्योंकि एक चीज जब डाउन होती है तो उसके बाद उसमें फिर ग्रोथ आती है, उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ एशियन क्राइसिस इन 1997 जब आया तो उसके बाद फिर नई से नई इंडस्ट्रीज इमर्ज हुई, रिवाइवल शुरू हुआ और उससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ी थी। देन अपॉर्चुनिटीज इन लैटिन अमेरिका लाइक नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 1993 बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको, आपस में इन कंट्रीज का एग्रीमेंट हुआ था। That was basically a free trade agreement. So it means कि when if Mexico wants to import any product from USA, there is no restriction at all, कोई कोटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है,
और यूएस अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल. देन रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस. आप अगर इन डेप्थ जाएं तो हर कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक स्पेसिफिक लिस्ट है, वही आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अदर देन दैट यू आर नॉट अलाउड टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दैट प्रोडक्ट. इंडिया ने अपने तौर पे बनाई है और पाकिस्तान ने अपने तौर पे बनाई है कि पाकिस्तान मैक्सिमम ये एक्सपोर्ट कर सकता है या मैक्सिमम ये इंपोर्ट कर सकता है. सेम इज द केस विद द इंडिया कि इंडिया ने अपनी एक सेपरेट लिस्ट बनाई है कि आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये इंपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव टू कीप देयर ओन बेनिफिट्स इन देयर माइंड. उन्होंने अपने आप को देखना होता है कि इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो फिर आपके पास ये उन्होंने लैटिन अमेरिका के अंदर देखा कि वी हैव टू रिमूव दीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो फिर उसके मुताबिक उन्होंने उनमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो खत्म की. Exposure to international risk. So when you go for international business, there are lot of risks involved in it. आपको जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल, आपको इकोनॉमिकल, आपको इसके अलावा पता नहीं कितने रिस्क बेयर करने पड़ेंगे. इनमें जो मोस्ट प्रोबेबली 3 तरह के आपके रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. दैट इज एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, देन एक्सपोजर टू फॉरेन इकोनॉमीज, एंड देन एक्सपोजर टू पॉलिटिकल रिस्क. ये 3 रिस्क हैं. वेन एवर यू गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस यू हैव टू फेस दीज 3 काइंड्स ऑफ रिस्क. फर्स्ट वन इज योर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने जो एग्रीमेंट किया कि ओके फॉर $1 million आई एम मेकिंग दिस एग्रीमेंट, आई विल परचेज $1 million प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू. अब ये आपका एग्रीमेंट हो चुका है. अब वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल $1 is equal to 100 rupees. We already know about it. For example, I am giving you, because for the time being this lecture would go for you and later or sooner, so this may have some changings. It could be 105, 95, whatever. So that is why I am just using this example. $1 is equal to 100 rupees. यानी आपको $1 के बदले में 100 रुपीज मिलेंगे या आपको देने पड़ेंगे. You have made an agreement for import of products which does cost, for example, $1 million. अब आपको पता है कि $1 के बदले में आपको 100 रुपीज देने पड़ते हैं. आपने इंपोर्ट की यूएस के अंदर से $1 million की. तो आप अगर देखें आपको अब इस स्टेज पर 100 मिलियन रुपीज ये देने पड़ेंगे. आज आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव टू मेक अ पेमेंट, इट कुड बी 105. $1 इज इक्वल टू 105. जो आपको $1 के अगेंस्ट 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं. आपको शिपमेंट मिली है फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ्स के बाद, और उस वक्त आपका जो डॉलर था वो 105 का हो गया था. सो यू हैव टू पे 5 रुपीज मोर, बट यू मेड एन एग्रीमेंट फॉर $1 million. अब आप देखें कि 1 million into 5 आपके अमाउंट का अंदाजा हो जाएगा कि ये आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, ये आपको रिस्क है. दूसरी तरह भी हो सकता है, 95 का भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी इज, एज वी सी आवर पॉलिटिकल कंडीशन, आवर इकोनॉमिक कंडीशन, वी सी दैट in 2008 it was almost 60 rupees or 65 rupees $1, but right now it is how much? 100 rupees. तो हो सकता है कि 2 महीने बाद और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर ये 105 पे चला जाए. सो इट मीन्स यू हैव टू पे 5 रुपीज मोर फॉर ईच डॉलर.
ये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बैंक को जाहिर है बैंक के थ्रू ही आप पेमेंट करेंगे, तो बैंक आपसे डिमांड करेगा कि नाउ एट दिस टाइम वी हैव $1 इज इक्वल टू 105, तो फिर क्या करेंगे आप? So there is a problem for exchange rate movement. So that could affect on your international business. Then exposure to foreign economies. Foreign economies के क्या हालात हैं? अब एक कंट्री का इफेक्ट दूसरे के ऊपर अंडरस्टूड होता है। If you remember 2007 global financial crisis that started from the US, but it traveled all over the world. It reached to UK, then in Europe, and from Europe to all over the world. अब सब पे 2007 से सिर्फ यूएस के अंदर स्टार्ट हुआ, लेकिन कहां कहां पहुंच गया? यूके के अंदर, और फिर यूरोप से एशिया, और पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेट में ले लिया इसने। अब आपको देखें कि मलेशिया की 98% जो एक्सपोर्ट थी मैन्युफैक्चरिंग, वो ड्रॉप हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल इकोनॉमीज। आपकी जो फॉरेन इकोनॉमीज थी उसका इफेक्ट आपके ऊपर हुआ। तो आपकी अगर ट्रेड मलेशिया के साथ चल रही है तो आप पे भी इफेक्ट होगा उसका, क्योंकि बिजनेस आपको लिंक करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी फॉरेन सब्सिडीज, आपके रेमिटेंसेस, दीज आर ऑल इफेक्ट ऑन योर इंटरनेशनल बिजनेस एंड दैट इफेक्ट ऑन योर ओन इकोनॉमीज। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, और वो आपकी इंटरनेशनल रिस्क को एक्सपेंड करता है। देन पॉलिटिकल रिस्क, आई थिंक we don't need to go in the detail about this political risk. We already know about it. When you have a political instability, we have issues with that is linked with all types of businesses. आप खुद देखेंगे पाकिस्तान के हालात को कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने हमारी पूरी इकोनॉमी को खराब कर दिया हुआ है। All the businesses are moving in other countries. जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर थी वो सारी की सारी मूव कर रही है, या तो बांग्लादेश के अंदर, या इंडिया के अंदर, या चाइना के अंदर। द रीजन इज दैट वी हैव अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, आपके पास कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। अभी जो आपके पास इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट खत्म हो रही है, नहीं स्टेबल है, खत्म हो रही है, नो स्टेबल, दिस इज स्टेबल। So that has an effect on your business. अब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। द रीजन इज दैट कि यू आर पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी तो पाकिस्तान के लोगों को जॉब्स कैसे मिलेंगी, उनको प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगी, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी पाकिस्तान के अंदर। आपके पास पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो फिर कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस लॉन्च करने से हेजिटेट करेगी। सो दिस हैज आल्सो इफेक्ट ऑन योर इंटरनेशनल बिजनेस। These are the international risks which are attached with your businesses. Exposure to exchange rate movements, then exposure to foreign economies, then exposure to political risk. These have strongly effect on your international business. And these are international kind of risks. Now, MNCs focus on international trade. We have, for example, 4 points here. What happens? Look at when you have, for example, you are living in US. So what happens? Why I took this example, you being a US citizen, कि हम US के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनकी डेवलप्ड कंपनीज हैं, उनकी फॉरेन सब्सिडीज पाकिस्तान के अंदर हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड दैट वी शुड गिव एन एग्जांपल ऑफ यूएस बेस्ड इकोनॉमी। MNCs focused on international trade. First point, they are doing only trade. So I just highlight this point. International trade. I'm not talking about any subsidiary or foreign investment, whatever. I'm just looking the first area, which was international trade. You are importing and exporting, one type of international business. Payments received for products
company has manufactured products and sell it out to its customers. So these are the US customers. कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाई और अपने ही कंट्री के अंदर अपने कस्टमर्स को सेल आउट की. सो हु आर दीज? यूएस कस्टमर्स. पेमेंट्स मेड फॉर सप्लाईज. अब कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है तो ऐसे तो नहीं बना रही, दे नीड अ रॉ मटेरियल. सो दे रिसीव्ड रॉ मटेरियल एंड दे हैव टू मेक अ पेमेंट फॉर दैट रॉ मटेरियल सप्लाईज. तो उन्होंने यूएस बिजनेसमैन को पेमेंट की. यहां पर आपके पास इनफ्लो हो रहा है और ये आपके पास आउटफ्लो ऑफ कैश हो रही है, क्योंकि पेमेंट मेड. यहां पर पेमेंट रिसीव्ड, यहां पर पेमेंट मेड. एक पॉइंट, ये अभी लोकल डिमांड को पूरा किया जा रहा था. देन पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट्स. पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट्स. अब आप फॉरेन इंपोर्टर्स की तरफ चले गए कि आपने, फॉर एग्जांपल, यू आर यूएस बिजनेसमैन एंड यू आर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टू द, फॉर एग्जांपल, इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तानी को इंपोर्टर है तो वो फिर आपको पेमेंट करेगा. अगेन आपके पास अब क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है. पेमेंट्स रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट्स. अमेरिकन बिजनेसमैन ने पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स भेजी, पाकिस्तानी इंपोर्टर ने उसको रिसीव कर उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी और इन्होंने रिसीव कर ली. देन पेमेंट मेड फॉर इंपोर्ट्स. अब यूएस को बिजनेसमैन है, उसने रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल इंपोर्ट किया. तो यहां पर ये यूएस सिटीजन, ये यूएस बिजनेसमैन कौन हुआ? इंपोर्टर. और ये आपका एक्सपोर्टर हो गया. अब यहां पर क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ फंड्स, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है. सो दैट इज बेसिकली फोकस्ड विद द एमएनसीज ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली. Then these are all 4 points are related, we discussed in our previous slide. Now fees received for service provided. अब आप सर्विसेज की तरफ आ गए. अब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उन सर्विसेज के अगेंस्ट आपको फीस मिली. अब हो सकता है यहां पे आपका बैंकिंग बिजनेस हो, बैंक की कोई ब्रांच हो. तो फिर उन्होंने क्या किया कि सर्विसेज प्रोवाइड की और उसके अगेंस्ट रिसीव कर ली फीस. फॉरेन फर्म्स हैं, क्योंकि अब आप इंटरनेशनल हो चुके हैं. ये सारे का सारा आपका लोकल, फिर ये सारे का सारा आपका दिस 4 पॉइंट्स, दीज आर योर इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट्स. नाउ you are moving towards the services type of business and you are now international. तो फिर आपके पास ये inflow, expenditures resulting from services provided. अब आपके पास यहां पर क्या हुआ? अब आपने सर्विसेज ली थी तो आपके पास ये आउटफ्लो हो जाएगा. ये अब आपका आउटफ्लो है. ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया आपका. Then these are 4 points for your first slides. These are your second slides. Now funds remitted back to US parent. Here is now subsidiary firms. अब आपकी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है या कोई बैंकिंग बिजनेस है तो वो भी हो रहा है, लेकिन यहां पर आपकी सब्सिडरीज हैं. तो फिर क्या होगा? फंड्स रेमिटेड बैक टू यूएस पेरेंट्स. सब्सिडरी कहां पे है? पाकिस्तान में. और पेरेंट कहां पे है? यूएस में. तो यूएस ने सब्सिडरी एस्टैब्लिश की पाकिस्तान के अंदर. अब इसने जो बिजनेस किया वो सारे का सारा कहां गया? यूएस के अंदर, यूएस की पेरेंट कंपनी के अंदर. ये आपके पास होम कंट्री और ये आपके पास होस्ट कंट्री. और इसका वाइस वर्सा क्या हुआ? फंड्स इन्वेस्टेड इन द फॉरेन सब्सिडरीज. अब फर्स्ट टाइम जब कंपनी ने बिजनेस एस्टैब्लिश किया, यहां पे फैक्ट्री लगाई, वहां पे प्लांट लगाया, तो यहां पर उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है. फंड्स इन्वेस्टेड इन फॉरेन सब्सिडरीज. तो ये आपके पास यहां पे इन्वेस्टमेंट हुई, तो इससे क्या हुआ? ये आउटफ्लो. ये इनफ्लो आपका
और ये आपका आउटफ्लो हुआ. सो दैट इज all related with your international business. Look at here, three things: international trade and international arrangements. ये यहां तक आपकी international trade और these 4 points related with the international arrangements. So that is all about related with your this part, because we added up the continuation of our lecture number 2 एंड लेक्चर नंबर 3. तो आप इनको अगर इकट्ठा करेंगे तो दैट वुड बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक आपको लिंक नजर आएगा, बिकॉज आई ट्राई टू गिव मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट दीज काइंड्स ऑफ टॉपिक्स सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपने एक स्टार्ट किया पॉइंट बिजनेस का, कंपनी से स्टार्ट किया, और उसके बाद आप जो आपने फंड्स का फ्लो होता है वो कैसे किया. इसमें हमने डिस्कस किए हैं. आपके पास जो सेकंड लेक्चर था आपका, उसमें आपने ओवरव्यू देखा. उसके बाद आपने इंटरनेशनल बिजनेस के मेथड्स भी इसमें देखे हैं. फिर आपके पास जो थेरीज थी आपने वो भी इसको देखी हैं कि कौन कौन सी थेरीज हैं दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए इंटरनेशनल बिजनेस. वो थेरीज आपको क्या बताती है इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में. फिर आपने यहाँ पर MNCs focused on international trade and international arrangements. So that was all about our lecture number 3. So I hope that with this detailed explanation, you are much more aware about this international business. So as I already told you in my first lecture that we are adopting basically 2 books. One is your international business management and the other is international financial management. इन दोनों का combination आपको एक बेहतर कोर्स आउटलाइन देगा. So up to this point I should wind up this lecture number 3. So inshallah in my next lecture we will come up with the new topics. So please take care and God bless you. Allah Hafiz.